हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम and right now you are taking the online classes from the different subject teachers. Students, you know that currently our country is falling with COVID-19. This pandemic situation create a huge problem for India, right? So right now, day by day, the COVID-19 is become serious and serious if you are not following the rules and the regulations. Okay, so whenever you go outside, wash your hand, wear your mask, right? Follow everything. With this wish, this is Virendra, your computer teacher, and I am here to give you the most important lecture on the mail merge. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेल मर्ज में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे हम मेल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें, एड्रेस लिस्ट को कैसे बनाएं, हम कैसे हम दोनों को मर्ज करें। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसमें प्रैक्टिकली करके इसको दिखाया गया है। सो डोंट स्किप एनी ऑफ द पार्ट, जस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। With this, let me introduce myself. This is Virendra, and in this we're going to have the chapter number 3 using mail merge in Word 2010. And today we are going to have the exercise of this chapter, right? So in this exercise we'll have the MCQ, then after we will have fill-ups, then true false. After this we'll have one word answer, right? MCQ, fill-ups, true false, one word answer. Okay, and then after what you will have, we'll have answer the following question. Answer the following questions. Answer the following questions, right? And finally, the last one is application based questions. ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम अपने एक्सरसाइज में कवर करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में आप एक्सरसाइज के साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स मूव टू आवर लैपटॉप स्क्रीन सो दैट यू कैन हैव योर एक्सरसाइज एंड इट्स सॉल्यूशन इन द एनिमेटेड फॉर्म। ओके, प्लीज कम। Okay students, now we are going to start our class. So as we have discussed that today we are going to have the exercise and the solution for the chapter number 3 using mail merge in 2010, right students? So students, as you know that mail merge is the one kind of feature through which you can send the common message to the many recipient. It will reduce your lots of effort for inviting many of the people, right? So now it's time to assessment, and then we'll have small checkouts that what are the questions and how it will be going to resolve, right? So let's come to my PowerPoint slide, and then we'll have the every question, okay, and with detailed explanation, right? So this is my PowerPoint presentation here, and let's slideshow here. So in this, first of all, I'm once again welcoming to my online classes, and this is the lecture number 113. Okay, and in this, first of all, you know that this is the topic is going on using mail merge in 2000 Word 2010, and topic is exercise and its solution, right? So right now the question number A says that fill in the blanks, right? Question 1,
The dash contains the text that we send to the all recipients. The dash contains the text. मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ में वो टेक्स्ट है जिसको कि हम सभी रेसिपिएंट्स के पास भेजते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी में बताने के बाद इसका आंसर मिल गया होगा। आप अपने आंसर यूट्यूब कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं आप, और आपका आंसर अगर सही हुआ तो एक लाइक आपका बनता है, ठीक है। मेरी तरफ से लाइक आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है। सो आंसर होगा इसका मेन डॉक्यूमेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन 2 है हमारा, मेल मर्ज इन्वॉल्व्स मर्जिंग द डैश विद इन द मेन डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज इन्वॉल्व मर्जिंग द डैश, मतलब क्या हुआ कि मर्जिंग मतलब कि कम से कम 2 चीज़ें होंगी जिसको कि मर्ज किया जाता होगा। वो 2 चीज़ों में से एक चीज़ दे रखा है यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट, दूसरी चीज़ क्या है, ओके। सो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। आप अपने आंसर देते रहें आप। आंसर इसका होगा डेटा सोर्स। यस, every time whenever you are using the mail merge, your data source as well as main document going to be merged at single time, okay. And whenever they merge, then you can say the merged document is created now. Then finally you have to take the printout of that, right? Now let's come to the question number 3. Data is organized in tabular form along with their dash names. डेटा को हम टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम एड्रेस लिस्ट को बनाते हैं हम या डेटा सोर्स को बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पर, ठीक है, व्यवस्थित होता है। सो बताना है विथ डैश नेम, क्या चीज़ मतलब किसके साथ वो व्यवस्थित होता है, ठीक है। सो आंसर इज फील्ड, आंसर इज फील्ड, ओके। चलिए अब आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। My mistake, it's 4th question. A tick gives an indication that a dash is selected. क्या selected? अगर मैं किसी पे टिक कर दूंगा तो मुझे select हो, क्या select हो जाएगा? ये बात कर रहा है आपका एड्रेस लिस्ट में। एड्रेस लिस्ट में कुछ चीज़ टिक करने पर या डेटाबेस में कुछ चीज़ टिक करने पर वो चीज़ सेलेक्ट हो जाता है। वो की चीज़ क्या है वो, ठीक है। सो द आंसर इज रिकॉर्ड, आंसर इज रिकॉर्ड, ओके। सो ये रहे आपके आंसर। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं। यहाँ पर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इन क्वेश्चन 5 सेज दैट द डैश टास्क पैन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द MS वर्ड विंडो। क्या चीज़, जब आप मेल मर्ज को यूज़ करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है राइट साइड में ओपन हो जाती है, ठीक है। आंसर होगा मेल मर्ज टास्क पैन। जब आप मेल मर्ज यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टास्क पैन है वो आपका आएगा कहाँ पर, राइट साइड में आएगा, MS वर्ड विंडो के राइट साइड में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी फिलिप्स हैं आप सभी ने इसको समझा होगा, और मैंने बहुत सारे बच्चों को लाइक्स भी दिए हैं, ठीक है, इस आंसर के लिए, आपके करेक्ट आंसर के लिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू हैव द डिटेल्स अबाउट द सेम। सो नाउ द क्वेश्चन इज नंबर B. It says that true or false. Students, you have to read out the sentence, then after you have to decide whether it's true or false. Question number 1. Mail merge involves 3 basic steps. Mail merge involve 3 basic steps. What are those steps? First of all, creation of main document. Second, creation of data source. And third one, merging of main document and data source. These are the basic steps, right? So I think the question number 1 is absolutely true, and you are also true because you are giving the answer, right answer. See, this is the answer, true. Now let's come to the second part. The main document consists of a mailing list. जो मेन डॉक्यूमेंट है, क्या मेन डॉक्यूमेंट में आपको मेलिंग लिस्ट मिलती है, एड्रेसेस मिलते हैं आपको? आंसर होगा नो, फॉल्स होगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब देखते हैं मेन डॉक्यूमेंट वो कॉमन टेक्स्ट होता है जो आप कई सारे रेसिपिएंट को आप देते हैं आप, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3. फील्ड्स इज अ कॉलम. Field is a column in a data source that contains one type of information.
फील्ड क्या है, एक तरह का डेटा सोर्स है, जो कि एक कॉलम होता है डेटा सोर्स के अंदर, वो एक ही तरह का इंफॉर्मेशन होता है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जब आप डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं आप, तो एक पूरी रो को आप कहेंगे रिकॉर्ड, पूरी रो को। रिकॉर्ड में डिफरेंट डिफरेंट डेटा हो सकता है, लेकिन अगर हम कॉलम वाइज बात करें, जैसे मान लीजिए नेम है, नेम का कॉलम है, तो नेम के कॉलम में केवल नेम ही तो दिखेगा आपको, ठीक है। इसलिए जो आपका थर्ड होगा वो होगा बिल्कुल सही। ओके, फील्ड इज अ कॉलम इन अ डेटा सोर्स दैट कंटेन्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन ऑन द मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन आएगा, डिस्प्लेस ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा सोर्स। जब हम प्रीव्यू रिजल्ट को हम देखते हैं यहाँ, ठीक है, तो आपको ओनली क्या केवल पहले रिकॉर्ड को ही वो शो करता है? क्या वो केवल पहले रिकॉर्ड को ही शो करता है? ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर होगा फॉल्स। अगर आपने कई सारे रिकॉर्ड को बना रखा है आपने, ठीक है, तो प्रीव्यू रिजल्ट से हम सारे रिकॉर्ड्स को वन बाय वन देख सकते हैं हम, ठीक है। ओनली की वजह से ये फॉल्स हो गया ये। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ मेल मर्ज प्रोसेस आर मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज्ड फील्ड। जो मेन कंपोनेंट है, जब हम मेल मर्ज करते हैं, तो मेल मर्ज करते समय जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है और जो मर्ज फील्ड है, क्या ये दोनों यूज होते हैं आपके मेल मर्ज प्रोसेस में? ओके, सो द आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। इसका आंसर ऑफ फॉल्स होगा। मैं यहाँ पर व्यू नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, so right now I have made the correction here, right? So the question number 5, the two main components required during the mail process are the main documents and the merge field। मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना है यहाँ पर कि जब हम मेल मर्ज प्रोसेस करते हैं हम, तो क्या उस समय मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है या कोई और दो चीज़ें हैं ये? ओके, आंसर होगा फॉल्स। ओके, आंसर होगा फॉल्स। कारण क्या है यहाँ पर कि मेल मर्ज करते समय दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 1 मेन डॉक्यूमेंट, नंबर 2 डेटा सोर्स। यहाँ पर मर्ज फील्ड की वजह से ये फॉल्स होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर हियर। ओके, एंड प्लीज मेक श्योर दैट ओनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, one word, and answer the following question. These questions should be there in your fair copy, and rest all the question that must be in your book. Okay, and you have to do by using your pencil only. Okay, so please ensure that. Now question number C, that is your multiple choice questions. That's a very interesting question for you, and you like very much, right? So now question number 1, dash is a row on a data sheet which consists of number of fields। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि डेटा शीट में जो रो होती है, डेटा शीट में जो रो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसके अंदर आपको नंबर ऑफ फील्ड्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने एड्रेस लिस्ट की विंडो खुली हुई है, ओके, and inside the window of address list you are entering your data row wise, right? So I have already told you the whole row is called record and the particular column is called field, right? So now it is asking about the row. Okay, so I think you are able to know which option is now correct, right? So the answer is yes, answer is B part. Answer is B, records. Let's come to the question number 2. Dash is a field which is used to insert data from the data source in a main document wherever they are placed। मतलब क्या हुआ, आपको बताना है कि वो कौन सा फील्ड है जिसमें कि हम डेटा सोर्स में अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं मेन डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर एक फील्ड की बात की जा रही है, ठीक है,
उस फील्ड में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसी का यूज़ करके अपने डेटा, उसी जगह पर आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, और वो जगह कहाँ पर है, डेटा सोर्स में। ठीक है, और ये जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, मेन डॉक्यूमेंट के लिए कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपने क्या किया है, मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट के बाद अब आपने यहाँ पे क्या किया है, डेटा सोर्स भी क्रिएट कर दिया है। अब बारी है कि जब दोनों चीज़ें क्रिएट हो गई है, अब आपको पर्टिकुलर जो मर्ज फील्ड है उसको पर्टिकुलर प्लेस पे, जो आपका डॉक्यूमेंट मर्ज करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर प्लेस पर आपको फील्ड्स प्लेस करने होते हैं। यहाँ पर जैसे अगर नेम का प्लेस है तो नेम वहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर एक बार और देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझिए कि आपने यहाँ पर डेटा सोर्स के अलावा अब यहाँ पर आपने जो मेन डॉक्यूमेंट है दोनों को आपने क्या किया है, यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करते वक्त आपने यहाँ पर मर्ज फील्ड को अलग अलग जगहों पर प्लेस कर दिया है ताकि उसका जो जब हम प्रीव्यू देखें तो अपीयरेंस उसका अच्छा है। ओके, चलिए, सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। टू इंसर्ट मर्ज फील्ड, द इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन कैन बी फाउंड ऑन डैश टैब। बताना है यहाँ पर कि जो मर्ज फील्ड बटन है वो कहाँ पर है, किस टैब में है। ओके, आंसर होगा इसका मेलिंग टैब में। ठीक है, मेलिंग टैब में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रीव्यू रिजल्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन डैश ग्रुप। मतलब प्रीव्यू रिजल्ट बटन कहाँ पर है, किस ग्रुप में, ग्रुप का नाम बताना है आपको आंसर पता चल गया होगा, प्रीव्यू रिजल्ट। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, ऐसे ही करेक्ट आंसर देते रहिए और मेरे से लाइक्स देते रहिए आप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। Now students, this is the question number D and you have to write this question in a fair copy, right? So in this, first of all, you have to read the question in a thorough manner. अच्छे से क्वेश्चन को आपको रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब आपको वहाँ पर ये समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंसर आपको नहीं निकले हैं, छोटे छोटे ही आंसर आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू हैव अ रीडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। ओके, राधिका हैज़ परचेज्ड अ ब्रांड न्यू लग्जरी कार। राधिका ने एक कार परचेज किया हुआ है। शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट हर हैप्पीनेस विद हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो अपनी खुशी को बांटना चाहती है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। She wants to extend personal invitation to each one of them without typing their names and address time again and again। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो पर्सनली सबको इनवाइट करना चाहती है लेकिन बार बार वो टाइपिंग से बचना चाहती है। वो विच मेथड कुड शी यूज टू फिल द रिक्वायरमेंट। कौन सा मेथड है, आंसर आपको पता ही है आपको। The answer should be mail merge method. Okay, so you have to write a single line. She can use the mail merge method in Microsoft Word. Right students, that's a very simple question for you. Okay, now it's time to move forward and we'll have the next question. Suchitra is the office assistant in a company. सुचित्रा कौन है, ऑफिस असिस्टेंट है किसी कंपनी में। She handles all the correspondence work of the company. वो क्या करती है, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी कॉल्स आती हैं, वो सारी कॉल्स वो अटेंड करती हैं, उसका डेटाबेस क्रिएट करती है, न्यू क्लाइंट्स के इंट्रैक्शन करती हैं वो। ओके, अब क्या लिखा हुआ, दिस मंथ हर कंपनी हैज़ मेड 5 न्यू क्लाइंट। अब उसकी कंपनी ने 5 नए क्लाइंट्स को बनाया है। अब उसको बताना है वेयर विल शी ऐड द कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल को ऐड करना है। ठीक है, ऑफ दिस विल ऑफ न्यू काइंड वाइल यूजिंग द मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके अपने क्लाइंट्स की जो डिटेल्स हैं उसे वहाँ पर ऐड करना है। सो अब यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेल मर्ज फीचर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेल मर्ज फीचर इन अ थॉरो मैनर। ओके,
So just give your answer on the YouTube comments, okay, and I will try to make it out to read each and every comment, right? So students, right now we'll have the particular answer of this question. This is your answer. The answer is to update or to add the contact detail of new clients. मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को ऐड करना है, अपडेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यू कैन क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन इन द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स. आपको पता ही है कि जब आप एड्रेस लिस्ट को अपडेट करते हैं तो अपडेट करने में वहाँ पे एक न्यू एंट्री नाम से एक बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए आप. क्लिक करने के बाद जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उसको फिल कर दीजिए, ठीक है. और यही स्टेप आप कई बार करिए जितने आपके क्लाइंट्स हैं. टोटल जितने भी 5 क्लाइंट्स हैं तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर 3 बार, 4 बार, 5 बार जितने भी क्लाइंट्स हैं उतनी बार आपको रिपीट करना होगा प्रोसेस. ओके, टू अपडेट और टू ऐड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ न्यू क्लाइंट यू कैन क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन इन अ न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स एंड fill the required details, right? So this is the answer of this question. Now students, it's time to move forward. We'll have the new questions for that. So that's one more question, that is your answer the following question in one word or one sentence. Okay, so please ensure that student that you have to write these questions in your fair copy, right? Now question number 1 says that in mail merge where do we organize the data in tabular form? हम अपने डेटा को टेबलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं कहाँ पर? तो ओके, जब मेल मर्ज करते हैं. सो द आंसर इज इन डेटा सोर्स. जब हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं तो अपने हर एक तरह के डेटा को हम मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ठीक है. स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, ओके. किसी भी पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप इसको जरूर दीजिएगा आप. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच टैब कंटेन्स मेल मर्ज ऑप्शन. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर मेल मर्ज यानी कि मेल मर्ज ऑप्शन है. आपको वो ढूंढना है कि कौन से टैब में है, कौन से मेन्यू में है. आंसर होगा मेलिंग टैब, ठीक है. आंसर होगा मेलिंग टैब. चलिए क्वेश्चन 3 हमारा, विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है? प्रिंट करना है. किस ऑप्शन पे हम टैप करें, किस ऑप्शन पे क्लिक करें हम? ओके, आंसर होगा इसका फिनिश एंड मर्ज बटन. फिनिश एंड मर्ज बटन. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट. चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं हम. विच पार्ट ऑफ डेटा शीट डिस्प्लेज वांट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही क्वेश्चन आपका दिया गया है. सो आंसर आपको पता ही है, आंसर होगा फील्ड, ठीक है. फील्ड ही एक ऐसा कॉलम, फील्ड मतलब कॉलम की बात करें, कॉलम में एक जैसी जानकारी आपको मिलेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. अब आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन योर फेयर कॉपी, ओके. And first question says that what do you understand by the term mail merge? Okay, what do you understand by the term mail merge? आपको डेफिनेशन यहाँ लिखनी है, आपको बताना है कि इस मेल मर्ज का मतलब क्या है. So let's have the answer. It is the feature of MS Word in which we can send the same letters or you can say same message to the number of people at different addresses. यहाँ पे लेटर्स जो कहा जा रहा है, लेटर का मतलब मैसेज की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते हैं आप. ओके, सो इट इज़ द फीचर ऑफ MS Word in which we can send the same letters or same message to the number of people at different addresses. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2, name the document that are combined while using the mail merge feature. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर. आंसर होगा मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स. डेटा सोर्स की जगह एड्रेस लिस्ट भी हम लिख सकते हैं हम. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम.
डिफाइन द टर्म डेटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर डेटा सोर्स क्या होता है। इट इज द प्लेस where we keep the addresses of the recipient in a tabular form with the field name। मतलब क्या हुआ, डेटा सोर्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अपने सारे एड्रेसेस को रखते हैं, रेसिपिएंट के एड्रेसेस को रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में टेबुलर फॉर्म में रखते हैं उसके फील्ड नेम के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू हैव द डेफिनेशन फॉर मेन डॉक्यूमेंट। सो इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू द रेसिपिएंट्स। ठीक है, ये वो कॉमन टेक्स्ट है जो हम अपने रेसिपिएंट्स को सेंड करते हैं। दिस इज द वन काइंड ऑफ कॉमन टेक्स्ट विच विल बी सेंड टू द मैनी रेसिपिएंट्स और मैनी पर्सन्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको प्रॉपर तरीके से समझे ज़रूर। आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर का क्या मतलब है, दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ फोकस। Now let's have to the new slide. Now we have came to the question number 4. Question 4 says that how many steps are involved in mail merge। मेल मर्ज में जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कितने हैं, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे आपको पता ही है। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व हियर। नंबर 1 क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, नंबर 2 स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, नंबर 3 मर्जिंग द डेटा सोर्स विथ मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, मर्जिंग द डेटा सोर्स विथ मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए, ये बेसिक स्टेप्स हैं जो कि मेल मर्ज में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हाउ विल यू क्रिएट अ रेसिपिएंट लिस्ट फॉर द मेन डॉक्यूमेंट। आपको एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करना है, रेसिपिएंट लिस्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए एड्रेस लिस्ट कह लीजिए, आप सब एक ही है। एड्रेस लिस्ट, डेटा सोर्स, रेसिपिएंट लिस्ट सब एक जैसा ही है। कैसे क्रिएट करेंगे आप यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल I am assuming here that you have created the main document. Once the main document is created, okay, select type a new list button। आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट बटन को सेलेक्ट करना है। ये आपको बटन कहाँ मिलेगा, आपको जब आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेंगे तो आपको ये स्टेप नंबर 2 में आपका आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप बुक में ज़रूर इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने शब्दों में यहाँ पर आंसर मैंने दिया है। ओके, तो सेलेक्ट टाइप अ न्यू लिस्ट बटन अंडर द सेलेक्ट रेसिपिएंट। आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, वहाँ पर 3 ऑप्शंस में से टाइप अ न्यू लिस्ट, ये जो लिस्ट है आपका, ये बटन भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पर आपको सेलेक्ट करना है और उसी के नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा क्रिएट, तो क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्रिएट करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स का नाम है न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हम वहाँ पे हम फिल करेंगे। ठीक है, और अगर हम एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो टैब की का प्रेस हम करेंगे। कीबोर्ड में बटन होता है टैब की, उसका हम प्रेस करेंगे हम। ठीक है, ऐसे करने से एक फील्ड से दूसरे फील्ड में हम जाएंगे। ओके, so step are saying that enter required data in the respective field and click on new entry button to add new record। ठीक है, अब आपको मान लीजिए पहली एंट्री हो गई है, दूसरी एंट्री करनी है आपको, तो अब आप यहाँ पर न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करें और वहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड कर दें। सारी एंट्रीज होने के बाद ओके करें, सारी एंट्री होने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स का नाम है सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आप केवल फाइल का नाम देंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, ये जो प्रोसेस है केवल आप रेसिपिएंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए है और ऐसा करने से आपको यहाँ पर एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट होके मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और सो स्टूडेंट्स, आई थिंक you are surely enjoyed in this video, and in this
you have done the exercise of chapter number 3 using main merge in World 2010. Students, I just want to have one request that kindly watch the previous videos so that you can have the understanding about each and everything. Because you know that right now you are staying at your home, maybe some students have the laptop or desktop, maybe some not, right? But you have to understand each and everything. पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं आपके लिए, ठीक है, पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है। तो आप अपना हार्ड वर्क जारी रखिए, हम अपना हार्ड वर्क जारी रखेंगे और हम दोनों मिलकर देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ओके, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो में आपसे मैं विदा लेता हूं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अदर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।